Hello, my dear friends. In previous lecture, we discussed the concentration terms divided into two parts. One is temperature dependent, another groups of concentration terms are temperature dependent. Okay, and we already discussed two terms. One is a percentage weight by weight, and second one is mole fraction. Another one very most important term that we have to discuss today, and that is molarity. Molarity is so many times in analytical chemistry or in a practical chemistry we have to use. So in our textbook the next one term is given, that is molarity. So let us discuss about molarity. So write down question, and that one is a very most important question. Write a note on molarity, or you can say explain molarity. Explain molarity. So let us first define molarity. And the definition is number of moles of solute, number of moles of solute present in 1 liter solution. 1 liter solution is called molarity, or you can say the concentration of the solution is called molarity. How many moles of solute present in a 1 liter solution? Remember, I am not telling 1 liter solvent, 1 liter solution. What does it mean? It means molarity is equal to, molarity is denoted by capital M, write down in bracket. So molarity is equal to number of moles of solute, number of moles of solute divided by volume of solution, volume of solution in liter. Okay, so in symbolic form we can write molarity is equal to, molarity is equal to number of moles of solute, it is denoted by small n, divided by volume of solution in liter. So based on this formula, if you are given molarity and volume of solution, then you can find moles of solute also. The another formula to find the moles of solute is equal to molarity multiplied by the volume of solution in liter. VL is nothing but the volume of solution in liter. But we know what is the definition of mole. So place here the definition, and this formula can be modified like this. Molarity is equal to W gram of solute divided by molar mass multiplied by volume of solution in liter. Why this formula can be modified? Because N is equal to weight of the solute divided by molar mass of the solute. Is nothing but the moles of solute. Remember,
if in place of liter solution, if ml is placed, suppose if I write here volume in ml of solution, then I can write the formula like this: molarity is equal to, all formula are applicable, remember, W gram weight of solute multiplied by 1000 divided by molar mass of solute multiplied by volume of solution in ml. Why? Because V liter is nothing but V ml डिवाइड बाई 1000। किसी भी V लीटर की जगह पे मैं V ml डिवाइड बाई 1000 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर ये वैल्यू में रिप्लेस कर देता V लीटर की जगह पे V ml डिवाइड बाई 1000 इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ लीटर। तो यहाँ पे V ml डिवाइड बाई 1000, वो 1000 ऊपर चला जाता, डिनोमिनेटर्स विल ट्रैवल ऑन न्यूमरेटर। तो मेरे पास ये पूरा फॉर्मूला एक आता, ये वाला। इसमें सब टर्म्स क्या है वो मैं समझा देता हूं आप लोगों को। W ग्राम इज नथिंग बट वेट ऑफ सॉल्यूट, mm इज इक्वल टू मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। मोलार मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो ग्राम मोल इनवर्स में आएगा, ये ग्राम में आएगा। VmL is nothing but, what is VmL? VmL is nothing but volume of solution in ml। और कैपिटल M जो है that is nothing but the molarity of solution। कितनी टर्म है इसमें? 4 टर्म। मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। कितने फॉर्मूले आप यूज करेंगे, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। एक तो ये वाला मोलारिटी इज इक्वल टू, अगर आपको मोल पता है तो सीधा सॉल्यूशन को लीटर में या तो ml में दिया तो लीटर में कन्वर्ट करके डायरेक्टली आप मोलारिटी फाइंड कर सकते हो। अगर आपको सॉल्यूट ग्राम में दिया है तो ग्राम डिवाइडेड बाय मोलार मास इनटू ये सेकंड नंबर फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, ये वाला। दिस वन इज नंबर 2, इसको नंबर 1 दे दो, सबके आंसर सेम ही आएंगे। और ये हाईली मॉडिफाइड, दिस वन इज नंबर 3। ओके, लेट मी एक्सप्लेन इन डिटेल दिस टर्म मोलारिटी। तो अगर मेरे पास, मैं ऐसा बोलता हूं, पहले यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ मोलारिटी, यूनिट उसका है मोल पर लीटर, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो मोल लीटर इनवर्स। ये मोलारिटी का यूनिट है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोलार। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोलार। चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। And the example is X, for example, write down example, 1 molar NaOH aqueous solution। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास 1 मोलार NaOH का aqueous solution है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल NaOH present in
1 लीटर सॉल्यूशन, या तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि 1 मोल NaOH डिजोल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 मोल यानी कि इक्वल टू मोलार मास। अब मोल कंसेप्ट का भी यूज आएगा, आपको पता है मोल क्या है। और मैं ऐसे भी बोल सकता था इस सॉल्यूशन को कि 40 ग्राम NaOH, 40 ग्राम NaOH, 40 ग्राम जो है वो NaOH का मोलार मास है। 40 ग्राम मीन्स 1 मोल। 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए मैं और बोल, आप सोचिए कि मुझे 1 मोल, 1 मोलार NaCl का सॉल्यूशन बनाना है, क्या करेंगे आप? सोचिए सोचिए। अगर आपको 1 मोलार NaCl का सॉल्यूशन बनाना है तो 1 मोल NaCl यू हैव टू डिसोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 मोल NaCl मीन्स 58.5 ग्राम। तो आपको पहले 58.5 ग्राम NaCl वेट करके लेना होगा। इसके अंदर धीरे धीरे पानी डाल के उसको 1 लीटर तक लाना होगा। ठीक है, अगर मैं इसमें 80 ग्राम NaOH डालता तो क्या हो जाता? मोलारिटी 2 मोलार। 3 मोल्स डालता तो 1 लीटर में 3 मोलार। 4 मोल्स इन 1 लीटर देन 4 मोलार्स। इज इट क्लियर? तो इसको थोड़ा समझना है। टेक 1 बीकर। तो अगर आपको 1 मोलार NaOH का सॉल्यूशन बनाना है तो पहले तो आपको 40 ग्राम NaOH लेना होगा। ये 40 ग्राम NaOH, चलो इस बीकर में यहाँ पे लिखा है कि यहाँ तक 1 लीटर हो जाता है। अब आपको इसमें पानी डालना है, पानी डालो उसको, तो NaOH पानी में डिसोल्व हो जाएगा। कहाँ तक डालना है? 1 लीटर तक। ये हो गया 1 लीटर। इस सॉल्यूशन को आप बोल सकते हो 1 मोलार NaOH एक्वियस सॉल्यूशन। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं वो मेथड गलत है। पहले आपने 40 ग्राम NaOH ले लिया और बाद में 1 लीटर पानी डाल दिया, तो ये 1 लीटर सॉल्यूशन नहीं है, ज्यादा हो जाएगा। पहले आपने 1 लीटर पानी ले लिया और बाद में उसमें 40 ग्राम NaOH डाल दिया, ये गलत बात है। ये 1 मोलार सॉल्यूशन नहीं है। 1 मोलार मतलब कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर होना चाहिए। तो फर्स्ट टेक 40 ग्राम NaOH and then add slowly slowly solvent, and make the solution 1 लीटर। इसके लिए आपको 1 लीटर पानी नहीं चाहिए, कम चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन आपको 1 लीटर बनाना है, उसमें 40 ग्राम तो NaOH आपने डाला है। अगर मैं 20 ग्राम NaOH डालता तो क्या हो जाता? 1 लीटर में हाफ मोलार। ठीक है, 10 ग्राम डालता तो 0.25 मोलार। बात समझ रहे हैं आप? थोड़ा लॉजिकली सोचने वाली बात है। चलिए और एक एग्जांपल लेके हम बात समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा एग्जांपल लिखिए। चलो मुझे बनाना है 0.2 मोलार, 0.2 मोलार NaOH का एक्वियस सॉल्यूशन। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि 0.2 मोल, 0.2 मोल NaOH dissolved in 1 लीटर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपका 1 लीटर होना चाहिए। 0.2 मोल मतलब कितना? तो आप वेट निकाल लो।
मोल दिया है तो आप NaOH का वेट निकाल सकते हो। फॉर्मूला आपके पास है, वेट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलार मास। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि 0.2 मोल का मतलब होता है 8 ग्राम। कितना? तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि इसका मतलब ये भी हुआ कि 8 ग्राम NaOH, 8 ग्राम NaOH dissolved in, or you can say present in 1 liter solution, 1 liter solution। बात समझ रहे हो? तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग यहां पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में देखिए प्रॉब्लम दिया है आपको, and that one is calculate the molarity of NaOH in the solution prepared by dissolving 4 gram in enough water to form 250 ml of the solution। चलिए उस प्रॉब्लम को देखते हैं। See my friends, the problem is already on your screen, and in our textbook that this problem is given, problem number 1.7. Based on the explanation of molarity, you have to find the molarity. Always list down first the terms given here. What is given? 4 gram NaOH, मतलब कि W gram means weight of solute, you are given 4 gram। अब आपको मोलार मास फाइंड करना है। मोलार मास ऑफ NaOH इज इक्वल टू, आप फाइंड कर लेना, Na का 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, तो आएगा आपका 40 ग्राम मोल इनवर्स। डिजोल्व इन 250 ml वाटर। हाउ मच? डिजोल्व इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml। यहां पे लिखा है डिजोल्व इन 250 ml वाटर and solution is prepared, not like that। solution volume is 250 ml है। ये हमारी टेक्स्ट बुक में सही लिखा है कि enough water to form 250 ml of the solution। ओके, यहाँ पे गलत लिखा है ये। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया है 250 ml। अब ml वाला आप यूज करना चाहते हो, आप इसको लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको फाइंड करनी है मोलारिटी तो ये फॉर्मूला यूज कीजिए। मोलारिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000, लास्ट वाला सिंप्लीफाइड फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय मोलार मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। चलिए इसमें वैल्यू डालिए, 4 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलार मास कितना है 40, और वॉल्यूम कितना दिया है आपको 250। अब इसको आप सॉल्व करिए तो यू कैन फाइंड 0.4 मोलर। आप चेक कर लीजिएगा, ये प्रॉब्लम हो गया। अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहते हैं पहला फॉर्मूला यूज करके, तो मैं आपको अल्टरनेट मेथड भी दे सकता हूँ। पहले मोल फाइंड कर लीजिए NaOH का, वॉल्यूम को लीटर में फाइंड कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए, फर्स्ट फाइंड द अल्टरनेट मेथड मीन्स मेथड 2। अल्टरनेट मेथड 2, मोल्स ऑफ NaOH कितना आता है? मोल्स ऑफ NaOH is nothing but 4/40, weight of NaOH divided by molar mass 0.1 mole, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 250 ml है तो मैं 0.250 लीटर लिख सकता हूँ। डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू डालिए, मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब कि NaOH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये भी एक फॉर्मूला है। तो 0.1 डिवाइडेड बाय 0.250, आप चेक कर लीजिए,
ये भी आंसर आपका आएगा 0.4 मोलार। चलिए, आप मोल का यूज नहीं करना चाहते लेकिन आप सॉल्यूशन लीटर में लेना चाहते, तो कौन सा फॉर्मूला होगा? अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट दे रहा हूँ, तो W मल्टीप्लाइड बाई 1000, नहीं ये 1000 अब नहीं आएगा क्योंकि आप सॉल्यूशन लीटर में ले रहे हो। डिवाइडेड बाय मोलार मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इस फॉर्मूले से भी आप जा सकते हैं। 4 ग्राम हमने डिसोल्व किया, मोलार मास है 40 मल्टीप्लाइड बाय 0.25। ये मैं इसलिए अलग 3-4 मेथड से कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि मोलारिटी एक्चुअली है क्या। एक फॉर्मूले के साथ आपको स्टिक नहीं रहना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इन डीपली व्हाट इज एक्चुअली द मोलारिटी इज। ओके, इसका आंसर भी आपका 0.4 मोलार ही आएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब मुझे जानना है इसका डाइल्यूशन फॉर्मूला, मतलब कि अगर आपको एक सॉल्यूशन दिया है उसमें से आपको दूसरा सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, जैसे हम रसना शरबत बनाते हैं, हमारे पास एक बोतल कॉन्सेंट्रेटेड भरी होती है, हमारे घर मेहमान आते हैं तो बोले कि बेटा ये 5 जो आदमी है उसके लिए शरबत बनाओ, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा रसना डालते हैं या तो कोका कोला डालते हैं और बाद में पूरा उसको पानी से भर देते हैं। लेकिन हमारे पास जो सॉल्यूशन है कॉन्सेंट्रेटेड है, हम उसमें 5 ग्लास में थोड़ा थोड़ा लेके पूरा ग्लास भर के हम गेस्ट को दे देते हैं है ना? तो ये इसको बोलते हैं, हमने हमारे पास जो सॉल्यूशन था रसना का, कोका कोला का, कोई आइसक्रीम फ्लेवर का, रूह अफ़ज़ा का, तो उसको थोड़ा थोड़ा लेके हम डाइल्यूट करके दे देते हैं, तो उसको बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ मोलारिटी। तब आप हेडिंग लगाएंगे कि डाइल्यूशन फॉर्मूला। ठीक है, मैं उसको समझाऊंगा। चलिए हेडिंग लगाइए, डाइल्यूशन फॉर्मूला। अभी पीछे एक्सरसाइज में भी कुछ प्रॉब्लम है मोलारिटी के, वो हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको समझाता हूँ डाइल्यूशन फॉर्मूला वो क्या है। आपको समझ में तो आ गया है प्रैक्टिकली कि आपके पास एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, उसमें पानी डाल के आप उसको डाइल्यूट करके पीते हो। काफ़ी चीज़ें पी जाती है इससे डाइल्यूट करके। नीचे लिखिए, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, द प्रोसेस ऑफ एडिशन of water, the process of addition of water in any solution, in any solution is known as, कोई भी सॉल्यूशन हो, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मोलारिटी में हो, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में पानी डालो या तो कोई सॉल्वेंट डालो। यहाँ पे मैं वाटर लिख रहा हूँ, आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ कि हम लोग एज ए सॉल्वेंट, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जो भी बनाना हो हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में वाटर में ही बनाते हैं। लेकिन मेडिसिनल केमिस्ट्री में, इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। काफ़ी सॉल्वेंट्स हैं, वो हम बाद में 12th में और इसी स्टैंडर्ड में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के सॉल्वेंट्स आते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर इन एनी सॉल्यूशन इज नोन एज, राइट डाउन, डाइल्यूशन। क्या है ये? डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन आपको सीधा समझ में तो आ गया है। तो यहाँ हम मैथमेटिकल फॉर्म में, अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहे तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, से रसना कोका कोला की बोतल भरी हुई है हमारे पास, तो ये है सॉल्यूशन 1, और समझ लो कि उसका कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी में है और मुझे पता नहीं है उसकी मोलारिटी है M1 और जो बोतल का वॉल्यूम है वो है V1 सपोज। अब मुझे उसमें से दूसरा सॉल्यूशन बनाना है और आपको बताया जाता है कि इसकी मोलारिटी इतनी होनी चाहिए, तो वॉल्यूम कितना होना चाहिए। ये 4 टर्म है सॉल्यूशन 1 की, तो इसमें से 3 आपको दी जाती है, 4th आपको फाइंड करनी। तो इसका फॉर्मूला पहले नोट कर लो, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। इसको बॉक्स में रख लो।
और यहाँ पे लिखो कि ये डाइल्यूशन फॉर्मूला है। क्या है ये? डाइल्यूशन फॉर्मूला। चलो लिख लो पूरा। ये मैंने प्रॉब्लम आपको एक बताया सॉल्व करके, अब जो है वो आपको ये डाइल्यूशन फॉर्मूला पूरा लिखना है। बाद में मैं एक एग्जांपल आपको एग्जाम्पल देके आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो डाइल्यूशन फॉर्मूला आपने लिख लिया, M1V1 M2V2, ओके। अब चलिए उसका एक एग्जाम्पल देते हैं। लिखिए एक एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, आपको पूरा डाइल्यूशन फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। यू हैव वन सॉल्यूशन, आपके पास ऑलरेडी एक सॉल्यूशन है, वो मैं दे रहा हूं आपको। हुज मोलारिटी, कितनी मोलारिटी है उसको वो आप लिखिए, इज 2 मोलार and volume is 200 ml and volume is 200 ml, ठीक है। if it is diluted, अब इसको डाइल्यूट करना है, if it is diluted, चलो डाइल्यूट करो अप टू 500 ml। अब उसमें मुझे कितना पानी डालना होगा? 300 ml अप टू 500 ml। देन फाइंड, अब आप उस सॉल्यूशन को 500 ml कर देते हो और आपको पूछा जाता है कि मोलारिटी अब फाइंड करिए कितनी है। देन फाइंड मोलारिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम। रिजल्टेंट ये आप प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में यूज करते हो, और एक टर्म आती है नॉर्मालिटी, जो हमारी बुक में है नहीं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और आप नॉर्मालिटी प्रैक्टिकल में ज़्यादा यूज करते हो, जब केमिस्ट्री प्रैक्टिकल करते हो ना, उसमें। मोलारिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, जिसको मोलारिटी आती है उसको नॉर्मालिटी इजी लगती है ना, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, आप घबराना मत। नॉर्मालिटी है नहीं हमारी बुक में, फिर भी मोलारिटी से इजी टर्म है, सिर्फ एक टर्म का फर्क है, बाकी जिसको मोलारिटी आती है उसको नॉर्मालिटी इजीली समझ में आ जाती है। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, मुझे क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक फॉर्मूला डालो M1, पहले आप नोट कर लो, पहले कितनी मोलारिटी है? 2 मोलार। वॉल्यूम कितना दिया गया है आपको? 200 ml। अब दूसरी जो मोलारिटी M2, उसको आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। वो वॉल्यूम आपको बताया गया कि उसको 500 ml तक ले जाना है, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो 500 ml होगा। कुछ नहीं करना है, वैल्यू डाल दो। क्या सोच रहे हो? कोई डिफिकल्ट बात नहीं। चलो लिख लो M1V1, है ना, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है ये तो। M2V2, आपके पास M1 है कितना? 2 मोलार, उसका वॉल्यूम कितना है? 200। आपको जो रिजल्टेंट मोलारिटी है वो पूछी गई है, आपने कहाँ तक वॉल्यूम लेके गए? 500। तो M2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 200 डिवाइडेड बाई 500। क्या आंसर आ रहा है? बोलो बोलो जल्दी। मेरा आंसर आ रहा है 0.8 मोलार। तो आपने जो सॉल्यूशन बनाया, तो आपको जो पहला सॉल्यूशन था वो पता होना चाहिए, ठीक है। आपको दूसरा सॉल्यूशन है उसका पता है, तो आप पहले सॉल्यूशन का भी आप फाइंड कर सकते हो, समझ रहे हो। चलिए एक दूसरा डायरेक्ट प्रॉब्लम दे देता हूँ, आप अपने आप सॉल्व करिएगा। चलिए एक और प्रॉब्लम लिखिए, एग्जाम्पल लिखो जल्दी। M1 इज इक्वल टू 0.2 मोलार। V1 मेरे पास जो ये सॉल्यूशन है वो 1000 ml, ml में लेंगे तो दोनों ml में, लीटर में लेंगे तो दोनों लीटर में, ठीक है। वो तो आपको पता ही है। आप
सेकेंडरी से वो पढ़ के आते हैं, यूनिट यूनिफॉर्म होने चाहिए। मेरा दूसरा सॉल्यूशन है वो है 1 मोलर। तो अब आपको पूछा जाता है कि इसका वॉल्यूम कितना मुझे करना होगा। देखिए, वॉल्यूम बढ़ाना है तो आप पानी डालेंगे, तो वॉल्यूम आपको शायद घटाना पड़े तो आप क्या करेंगे, उसको बॉईल करेंगे, पानी को वेपर फेज में आप करते हो ना। सेचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाते हो, अभी आप उकाड़ा बनाते हो तो कैसे बनाते हो, ठीक है। बॉईल करते 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 पानी थोड़ा बचता है तब आप उसको पी लेते हो, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, है ना। तो ऐसा मत सोचना कि हर बार आपको पानी डालना है, कभी पानी निकालना भी पड़ सकता है, तो निकाल तो सकते नहीं हो आप सॉल्यूशन में, तो बॉईल करके आप उसको इवापोरेट कर दो। ये कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम है। आपको पूछा क्या है कि फाइनल वॉल्यूम क्या होगा आपका, तो यही फॉर्मूला आप डाल दो, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। अब इसकी मोलारिटी तो आपको दी है 0.2, वॉल्यूम दिया है 1000 ml, दूसरी भी मोलारिटी दी है, तो आपको वॉल्यूम कहाँ तक ले जाना होगा, यही तो पूछा है, ठीक है। तो V2 इज इक्वल टू क्या होगा, 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 2, और मुझे ये 200 ml तक, मतलब कि इसके अंदर से मुझे सॉल्वेंट निकालते निकालते सॉल्यूशन को रिड्यूस करते करते 200 ml तक मैं ले जाऊंगा, ठीक है। और एक बात इसमें सपोज कर लेनी है कि इसके साथ सॉल्यूट हमारा इवापरेट मतलब कि बॉईल नहीं होता है। अब कोई भी सॉल्यूट ले लो, सॉरी, ठीक है, कॉमन सॉल्ट ले लो, शुगर ले लो, यूरिया ले लो, तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, ये सॉल्यूट नहीं होता है, वो ऐसे ही अंदर पड़ा रहता है। लेकिन जैसे जैसे पानी निकलता है बाय इवापोरेशन, वैसे वैसे ही सॉल्यूशन कम होता जा रहा है। तो आपको दिया है 1 लीटर और आपको बनाना है उसको 200 ml, तो यहाँ पे वॉल्यूम रिड्यूस करना है, तो घबराना मत, रिड्यूस किया जा सकता है। और मेरे प्यारे बच्चों, कभी कभी आपको डेंसिटी देके परेशान किया जाता है कि अब मोलारिटी फाइंड करो, तो उसमें थोड़ा आपको लंबा सोचना पड़ता है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो मैं आपको एक डायरेक्ट फार्मूला दे रहा हूँ, उसके रिलेटेड मैं प्रॉब्लम भी करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अब आप अपनी बुक में ये फार्मूला लिख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये मोलारिटी के रिलेटेड एक फार्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, एंड दैट वन इज write down formula to find molarity, formula to find molarity when concentration given in, अगर आपको एक कॉन्सेंट्रेशन दिया है और वो आपको दिया है परसेंटेज वेट बाय वेट में, तो एक बात ध्यान में रखना, इसमें आपको डेंसिटी चाहिए, डेंसिटी दे दी होंगी, ठीक है। अगर डेंसिटी नहीं है तो फिर नहीं हो सकता है। तो आप पहला फॉर्मूला लिख लीजिए, और एक टर्म 12th में आने वाली है वो है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो इसको भी यहाँ मॉडिफाइड किया जा सकता है, लेकिन अभी हमने परसेंटेज वेट बाय वेट पढ़ा है तो हम लोग इसका रिलेटेड ही, अगर आपको बोले कि फाइंड मोलारिटी, तो आप लिख लीजिए मोलारिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 10, कुछ नहीं करना है, और जो सॉल्यूट है उसका मोलार मास उससे डिवाइड कर दो, आपको डायरेक्ट मोलारिटी मिल जाएगी। और दिस फॉर्मूला इज अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और एक 12th में, मेरे प्यारे बच्चों, एक 12th में टर्म आएगी वो है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अभी दे दो वो फॉर्मूला, चलिए लिख लीजिए, उस टाइम दोबारा हम लिखेंगे, ठीक है। तो अगर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है तो डेंसिटी नहीं चाहिए, तो आप लिख लो
मोलारिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ये टर्म भी मैंने आपको नहीं समझाई है, वो भी मुझे समझानी है, लेकिन अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाय मोलार मास। इसमें सिर्फ फर्क इतना है कि डेंसिटी नहीं आपको मल्टीप्लाई करनी है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है। अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम दिखे और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हो और सॉल्यूट का आपको मोलार मास पता हो, तो आप सीधा इस फॉर्मूले से मोलारिटी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमारी टेक्स्ट बुक में एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप देखिए, एंड दैट वन इज 1.5, है ना, निकाल दिया आपने। चलो देखो 1.5, ठीक से पढ़ो इसको। कैलकुलेट द मास ऑफ, चलो मैं थोड़ा टाइम देता हूँ आपको पढ़ने के लिए, बाद में मैं स्टार्ट करता हूँ, आप थोड़ा उसको समझिए। ठीक है, पढ़ लिया आपने ठीक से? ओके, क्या सोचते हो? सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है उसमें। चलिए हम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो क्या क्या दिया है, आप पहले सॉल्यूशन मत देखना, पहले आप उसको पढ़ के कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट। ये सोडियम एसिटेट है, 500 ml सॉल्यूशन, मतलब कि यहाँ पे आप पहले लिस्ट करिए VML कितना है, 500 ml सॉल्यूशन। मोलारिटी आपको दी है सॉल्यूशन की, मोलारिटी कितनी दी है, 0.375 मोलार। कितना है, 0.375 मोलार। मोलार मास भी आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, मोलार मास भी आपको यहाँ पे दे दिया गया है। कितना दिया है देखिए, मोलार मास इज इक्वल टू 82.0245 ग्राम मोल इनवर्स। कितना इजी प्रॉब्लम है। तो आपको सिर्फ फाइंड करना है वेट ऑफ द सॉल्यूट, W ग्राम। मुझे बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमारी टेक्स्ट बुक का ही ये प्रॉब्लम है, पीछे एक्सरसाइज में दिया है। ठीक है, ठीक से देख लीजिए। अब ये फॉर्मूला यूज़ करिए, अभी अभी मैंने आपको लिखाया है वो, मोलारिटी इज इक्वल टू W ग्राम। अब वॉल्यूम ml में है तो यहाँ पे 1000 रखिए, लीटर में तो 1000 नहीं आएगा यहाँ पे, वो आपकी मर्जी, आप यहाँ ml में लेंगे कि लीटर में लेंगे। ठीक है, अगर ये वॉल्यूम लीटर में लेंगे तो ऊपर वाला 1000 निकाल देना, वॉल्यूम ml में लेंगे तो 1000 रखना है, वो मैंने समझाया आपको कैसे वो 1000 आया है। कितना है W ग्राम आपके पास, तो 0.375 रख दीजिए वैल्यू। अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाता है ना, तो फिर इसमें रुकने की ज़रूरत नहीं है, आपको पॉज करके या तो फॉरवर्ड करके आगे जाना है। जिसको नहीं समझ में आता है उसको ही पूरा ये देखना है, आपको समझ में आ जाए तो सीधा आप स्पीड में चल के आगे चले जाइए। ठीक है, 1000 डिवाइडेड बाय मोलार मास कितना है, 82.025 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना दिया है, 500 ml। यस, और मोलारिटी भी दी है यहाँ पे, ये उसको रख दीजिए। तो इसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म आएगा कि W ग्राम इज इक्वल टू, ये थोड़ा गलत वैल्यू रिप्लेस हो रही है। ठीक है, तो मैं फिर से रख देता हूँ, ये 375 तो मोलारिटी है। ठीक है, तो फिर से देखिए ये 375 ग्राम नहीं है, तो फिर से मैं रख रहा हूँ इसको 0.375 यहाँ पे आएगा। यस, क्योंकि W ग्राम तो आपको फाइंड करना है, W ग्राम यू हैव टू फाइंड। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, ये जरा गलती हो गई इसमें। ठीक है, मोलार मास आपको दिया 82.025। हाँ अब ठीक है, वॉल्यूम आपको कितना दिया है, 500 ml। तो अब आप W ग्राम तो आप फाइंड कर सकते हो, 0.375 मल्टीप्लाइड बाई 82.025
मल्टीप्लाइड बाय 500 और डिवाइडेड बाय कितना आएगा, यस 1000, यस। अब आप चेक करिए कैलकुलेटर से या तो ओरल कैलकुलेशन करो क्या आंसर आ रहा है। मेरा आंसर आ रहा है 15.38 ग्राम। राउंड अप करना चाहो तो भी कर सकते हो, ठीक है। 15.4 ग्राम है, ठीक है। तो ये हमारी टेक्स्ट बुक में पीछे जो प्रॉब्लम है एक्सरसाइज में, इसमें ये दिया गया है, तो इसको थोड़ा ठीक से देख लीजिए। अब मैं आ रहा हूँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम भी बहुत बढ़िया है, 1.6, ये कर लीजिए और उसको पढ़िए, ठीक है। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर वो प्रॉब्लम नंबर 1.6। कितना बढ़िया प्रॉब्लम है। आपको टेक्स्ट बुक मेथड से या तो ऐसे नहीं जाना है, मैंने आपको एक शॉर्टकट फार्मूला दिया है यहाँ पे ये सॉल्व करने के लिए। पहले तो आप देख लीजिए क्या क्या दिया है आपको, ठीक है। अगर आप अपने आप ट्राई करना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर दीजिए, बाद में देखिए। और अगर यहाँ पे जो सॉल्यूशन दिया है उस हिसाब से करना चाहते हो तो भी कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको समझ में आ जाता है तो, ठीक है। तो इतना पार्ट देखने की भी ज़रूरत नहीं है। इफ़ योर मैथेबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग पावर इज़ गुड, ओके। तो आपको बताया है कि कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, उसकी डेंसिटी इतनी है 1.41 ग्राम पर ml, और उसको परसेंटेज बाय मास, इसका मतलब है आपको, पहले मैं नोट कर देता हूँ क्या क्या दिया है। परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू 69% दिया है। एक चीज़ डेंसिटी आपको दी है 1.41, है ना। ये मैं जो बता रहा हूँ वही मेथड आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट रहेगी। अब आपको मोलार मास जरा फाइंड कर लेना है HNO3 का। मोलार मास आएगा आपका, राउंड फिगर में ही ले लीजिए। हाइड्रोजन कौन सा, नाइट्रिक एसिड है ना, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला ये रहा HNO3। तो हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 और एक ऑक्सीजन का 16, तो आपका आएगा 63 ग्राम पर मोल। मैंने 1 to 30 आपको प्रिपेयर करने के लिए बोला है, ये 63 है, हाँ 639 नहीं है, ये ग्राम पर मोल, ध्यान में रखिएगा 63 ग्राम पर मोल। अब सीधा मोलारिटी वाला फॉर्मूला लगाइए, चलिए सीधा मोलारिटी वाला फॉर्मूला। मोलारिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट, वो डेंसिटी और मोलारिटी का रिलेशन है ना, और परसेंटेज वेट बाय वेट का मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय मोलार मास, सीधा आंसर आ जाएगा आपके पास। परसेंटेज वेट बाय वेट कितना दिया है, हाँ जी, परसेंटेज वेट बाय वेट कितना दिया है आपको, 69, यस। फिर डेंसिटी कितनी, 1.41, वेरी गुड, मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय मोलार मास कितना आया हमारा, 63। कैलकुलेटर में चेक कर लो कितना आंसर आ रहा है। आंसर आना चाहिए आपका 15.44 मोलार। कितना आना चाहिए, आंसर आना चाहिए आपका 15.44 मोलार, चेक कर लो, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी आज के लिए इतना ही। और कुछ कंसंट्रेशन टर्म और मोलारिटी के बारे में हमें कुछ डिस्कस करनी है, और एक टर्म भी बाकी है वो है मोलालिटी, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इतना थोड़ा समझने की ट्राई करो, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।